About serial communication, uh, which is a integral part of microcontroller. Several types of uh, serial communication options are available within the microcontroller, and we can talk about. First, we talk about one very popular option, that is a serial RS-232 interface. Uh, as I said, serial communication standard became popular because it needed only two wires to or three wires to communicate, and uh, the magic happened when these three wires were connected to a modem, and then the modem could connect to another modem anywhere in the world, and so that the computer could communicate to any computer in the world. That is when the big magic happened, and this is then that basically the uh, seed of internet was sowed, and we had internet in the making. So serial communication is basically that started the communication between computers, and then it started all the uh, internet age that which we live in today. Uh, so, what is a modem? We'll talk about that later. Of course, there is then a lecture on that also, modem. Today, we'll talk about serial communication, and let me share the screen. Right. So, this is a serial communication protocol. So, what is the standard? So, what is a standard? Standard means many things. Standard, if you want to make a standard that can universally be accepted, so everyone could create a standard, some device with the same standard, then they will be able to communicate with each other. Like I was giving an example of uh, uh, fax machine. So fax machine standards are universal standard. They are not developed by those companies that actually make fax machine. And IEEE has a lot to do with in standards development. Many universal standards, and ITU, International Telecommunication Union. They both of them are take a lot of effort, do a lot of effort to make those standards. So, what is it? Standard. Standard defines maximum frequency, maximum transmission or rate, uh, handshaking mechanism that we'll talk about later. How handshaking means that when you send some data, the receiver can send and acknowledge. So, if you don't receive and acknowledge, basically that means you have to send data again. So, ACK-based communication need handshaking, acknowledge based. Internet is not technology based. It's best effort kind of uh, communication protocol. Uh, Formatting is important. So, say for example, if you're sending a byte, which bit will be sent first, LSB or MSB? So if the receiver doesn't know this format, then the whole
whole data will be corrupted. So these standards are developed by the independent authorities. Data representation, will you send a 1 byte of data in one transmission cycle, or will you send a block of data in one transmission cycle? When you send a block, it's called a frame. Uh, so that very common in internet frames are. So if you're sending a frame, then what is the frame format, and what are the physical pinouts on the connection? If you कनेक्टेड डेवलप करेंगे आप, व्हाट इज द पिन नंबर 1 वुड सी, यूएसबी का जैसे एक स्टैंडर्ड है कि उसमें 4 पिन होती हैं, एक साइड पे ग्राउंड है, एक साइड पे वीसीसी है, एक से डाटा ट्रांसमिट है डी प्लस, एक डी माइनस है. सो इट्स basically two-way data transmission protocol. And it is the uh, voltage levels, uh, what voltage levels should be uh, adopted. If the voltage levels are not according to the standard, then a standard receiving device will not be able to recognize the data that we are sending. The voltage level in, for example, in USB, they are 5 volts voltage level, and they are basically called 5 volt has a VCC connotation to it. VCC usually means plus 5 volt in some, and also there is another connotation attached to VCC, and that is TTL, transistor logic. SAM4 series is a transistor logic that operates works on 5 volts. So sometimes these voltage levels are also called a TTL level, transistor logic. So any serial communication protocol sometimes have TTL interface, means they can work on plus 5 volt. Some standard serial communication interface uh, don't work on TTL level, like RS-232 we talk about today in great detail. Uh, it was the first one to actually develop. In that standard, plus 1 is represented by minus 12 volts. Yes, minus 12 volts. And 0 is represented by plus 12 volts. So if your device is not able to handle those voltage levels, you cannot connect that serial port output to directly to your microcontroller, because plus 12 minus 12. Many computers in the beginning used to have a serial port in on the back of the computer. इधर कोई है ऐसा कंप्यूटर जिसके पीछे सीरियल पोर्ट लगी, कोई लैपटॉप? उधर एक वो पड़ा हुआ है, मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, उस पर देखो शायद देखिए, कंप्यूटर का मदरबोर्ड वो ऊपर. Right. So interesting. इस पे रखना तो. So this is an old computer motherboard, as you can see. Uh, this has many standard interfaces. Without those standard interfaces, nothing would work. The PCI port is standard. The advanced graphics AGP port is standard. Uh, Similarly, we have lots of standards over here. PS2 for mouse. These are standards, mouse and keyboard. Right. किधर गया ये, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था. So these are mouse and serial port standards. Here over here, this is the parallel port standard that you was used for computer interfacing to printer and something like that. And below that, we have two RS-232 interfaces. These are called COM ports.
COM port, and there is a VGA port for for the processor. So they are different. VGA port has 4 lines of pins over here, or three lines of pins, whereas the serial port only has 2 lines of pins, and it is a 9 pin connector, only 9 pin connector. So when the data is communicated through this cable भी दिखाना है communication port ये जो लगती है ना यहाँ पे, when the data is connected used to be communicated through this communication port, that camera is blurry क्यों भाई clear नहीं आ रहा? ये पोर्ट्स नहीं क्लियर नजर आ रहे कैमरा में। वो मुझे भी नहीं नजर आ रही, वो इतना क्लियर नहीं होगा ये कैमरा कि मैं बिल्कुल ही करीब, किधर गया यार? ओह, इसको बड़ा करना पड़ेगा। हो जा पिन। तो उधर से कोई लाइट है यार, इस पे लाइट डालो कोई अपने मोबाइल फोन से, मैं पकड़ के रख उधर पे जाके मोबाइल फोन से लाइट डालो। Yes, up clear. So as you can see, there is a parallel port and is a communication port, and there is a VGA port to connect the monitor, to few USB ports and audio port, mic and speaker and everything. So this is a very interesting display in front of you. Nowadays, you know, these COM ports don't exist anymore, and everything is turned to USB. However, USB protocol is very complex, and uh, it is not possible to uh, communicate everything in USB using USB. Uh, no microcontrollers, very few microcontrollers, advanced level have USB interface, and we have some available in the lab if someone would like to work on USB side. But mostly it's a serial port that is available because it's a very simple uh, universal asynchronous receiver transmitter is needed, uh, whereas USB port requires a whole protocol stack to be built, and there's so many devices that can be connected to the USB port: heat devices, storage devices, SD card devices, you know, camera devices, and scanner devices. All of them have a different class in terms of USB, but serial port doesn't have this issue. So we're talking about serial communication. So this is what you have to remember. What are the standard, right? What format, what are different things that make up a standard? The timing, control, handshaking mechanism, formatting, data representation, frame format, physical pinout on the connector. So if you do not follow any of these, you are in trouble. Mechanical interface. The connector type is there's so many mechanical interface for USB. Uh, so these interfaces are defined, well defined. Okay, how will they be? What will be the exact size of the interface? And these are not defined by some. Apple does that. It defined its own ports and its own interface. That's why I don't like Apple. I like to things to be, you know, kind of universal. इसलिए मुझे एप्पल पसंद नहीं. I don't use Mac. I don't use iPhone. मतलब उन लोगों ने ना वो पता नहीं क्या सड़क पे जाने वालों के लिए चीजें डिजाइन की हुई हैं. हम लोग इंजीनियर लोग जो है ना, हमें चाहिए होता है कि वो स्टैंडर्ड
फॉर्मेट हो जिससे चीजें कनेक्ट हो सकें. So, so we're talking about serial communication where we have a parallel to shift register that takes a byte, converts into a shift register like a toast from a bread, and it transmits on the other side, and we collect them to form a parallel output again. So this is serial to parallel interface. उसकी diagram मैंने last time board पे बनाई थी, so I'm not going to make that again. Yeah, you can check that. Many times, to distinguish between different bytes, you need to add uh, what is called a step separator. It's sometimes called a stop bit or a start bit between the bytes. And successive in asynchronous protocol, data can appear at any time. So there are two types, synchronous and asynchronous. So let us talk about asynchronous first. In asynchronous protocols, data appears at arbitrary times with no specific uh, clock controlling or governing the relative delays between the data. Whereas synchronous, the data has to be synchronous within a byte, within a character or within a byte. Otherwise, if you want to send zero, how would you know that I have sent 8 zeros or 1 0 or 5 zeros? So you have to have some kind of notion of time per bit. Remember this. Time per bit is there. No matter it's excessive is asynchronous communication or synchronous communication, time per bit has to be established. If there is nothing, no notion of time per bits, in binary, you won't be able to send a sequence of zeros or sequence of one. So there has to be a time notion agreed on both sides so that everyone knows okay, what is the time to receive 1 bit of data. सर So आप ये थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स. asynchronous protocol is the data doesn't appear at any time. It appears an arbitrary time, and there is no clock. Doesn't have to be there. You don't have to send a clock with your data. So, but there has to be a time agreement on both sides. That what will be the time to send 1 bit of the data. और एक्सप्लेन करूं? सर जो प्रोटोकॉल की जनरल डेफिनेशन थी वो ये कि आपने किस मेथड से डेटा भेजना है. हाँ, किस मेथड से डेटा भेजना है वो मैंने ये बताया ना पहली स्लाइड में. प्रोटोकॉल क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, एलएसबी फर्स्ट होगी, टाइम क्या होगा, ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा. लाइक यूएसबी का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कोई मे बी 1 मीटर या मैक्सिमम 2 मीटर. उससे आगे वो गारंटी नहीं करते कि जी अब यूएसबी हो चलेगी. और अगर आपने कोई हाई स्पीड डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क लगानी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो और छोटी होनी चाहिए यूएसबी केबल, वरना वो डिटेक्ट नहीं होती कंप्यूटर में. सो बेसिकली दीज, अब मैं कहूँ जी कि मैं यूएसबी केबल 2 मील लंबी यूएसबी केबल लगा लूं और वो चले नहीं, तो इसमें स्टैंडर्ड बनाने वालों का कोई कसूर नहीं. स्टैंडर्ड वालों ने कहा हुआ है जी कि 1 मीटर से लंबी तार नहीं होनी चाहिए. और वायर की भी स्पेसिफिकेशन है कि किस तरह से उसकी वायर के अंदर कैसे होनी चाहिए, कितनी मोटी तार होनी चाहिए, तो दैट द डाटा कैन कोई, ताकि असली तार जो होगी वो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द यूएसबी की. अक्सर असली जो वायर होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, एंड दैट विल गारंटी 1 मीटर डिस्टेंस travel of data at the given USB speed. So these are the standard that we talk about. So we were then talking about serial communication, which is where the data is sent by bit by bit. Last time we talked about parallel communication, where data can be sent byte by byte, but that needed many wires to be connected between two computers. In serial communication, you just need 3 wires, one for the transmit, one for receive. And आपने last वाला lecture देखा है आप लोगों ने?
कितने लोग हैं, टाइप तो करेंगे कितने लोगों ने देखा लास्ट वाला लेक्चर। जिन जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं यस आई हैव, यस आई हैव, जरा टाइप तो करें यहाँ पे, मैं देखूं तो सही यार कितने लोगों ने देखा है। वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी क्लास है ऑनेस्टली, बहुत लोगों ने देखा हुआ है, वेल डन। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू लिव लॉन्ग हैप्पी लाइफ, may you find a good job and have a very good future. All I can pray these days for you guys. What else I can do? Oh, okay. Uh, so synchronous is, however, synchronous has to be synchronous within a character. उसकी मैं थोड़ा सा चले RS-232 की बात करते हैं. That this is the very first serial communication standard that was established in 1970s to communicate between two computers. It's called RS-232. I don't know why it's RS-232. There are many of RS-488 also, many standard, but RS-232C is very popular standard. And almost all microcontrollers have this standard built in for serial communication. So what is RS-232? Basically थोड़ा सा इसकी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ. RS-232 स्टैंडर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ. RS-232C स्टैंडर्ड पता नहीं कौन इसको ला देता है यार, सीधा कौन करता है, हर दफा इसको करना पड़ता है. थोड़ा सा जूम करते हैं. So basically in RS-232 standard you have two computers that are distance apart. The standard defined that this standard distance cannot be greater than 15 feet. So you have a minimum 9 cable are needed. Most of some cables are for handshaking, but if you only have 3 cables, that will do. One is TX, one is RX, and one is ground. So minimum 3 will do. When you make this kind of connection, this is minimum connection. Sometimes it has a name called null modem system, because there is no modem in between. We'll talk about modem in some lecture, then we'll introduce modem also. So this is a minimum serial interface between computer 1 and computer 2. In standard RS-232, the bits are sent on the serial port at minus 12 volt, representing 1, and plus 12 volt representing 0. So there was a 24 volt difference between 1 and 0. That way it was able to transmit over a long distance, because with noise or with wire impedance or with wire resistance, the voltage drop will not be enough to cause this 12 volt to be confused with minus 12. So there was a lot of leeway, a lot of margin, which we called a noise margin. So there was a lot of noise margin for this to be dropped to this. So this was standard 12 volt. So this is the voltage level. The connector was a 9 pin connector, and 9 pin connector, 5 pins on one side and 4 pins on the other side.
and this was a standard RS-232. If you look at your green board, if you have close by, you will see that there is a connector on that board also. If you breakout board होगा आपके पास माइक्रो कंट्रोलर का रेड ग्रीन ब्रेकआउट बोर्ड, उसके एक साइड पे ये सीरियल इंटरफेस लगा भी हुआ है. Although we are not going to use it because we will use USB to serial, so we'll talk about that. So this was the standard model. So how is the communication that happens? इधर करना जरा यार, कम्युनिकेशन कैसे होती है? अब मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर मैंने फर्ज करें इस्लामाबाद रखा, फर्ज करें, तो मैं कैसे दो वायर्स में ट्रांसमिशन करनी है डाटा की, तो मैं कैसे डाटा ट्रांसमिट करूं? पहले जो लोगों ने सोचा उन्होंने बैठ के यही सोचा होगा कि ये दो वायर्स हैं, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ इस्लामाबाद में और दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है लाहौर में, और मैंने एक डाटा ट्रांसमिट करना है, मैं कैसे करूं? मेरे पास दो वायर्स हैं, कैसे ट्रांसमिट करूं डाटा? तो बड़ा उसमें लोगों ने सोचा, मुझे भी उन्होंने बुलाया, ये बहुत पुरानी बात है, 1940 50 60 की बात है. तो जब ये इन्होंने ये ASCII कोड डेवलप किए, उस जमाने की बात है, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया कि भाई ये बताओ कि कैसे करें. मैं उस वक्त छोटा सा था, बारह में चला गया. मैंने कहा चले बैठ जाते हैं, इनके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे करना है इसको. तो फोन भी आते रहते थे उनके मुझसे पूछने के लिए कि इसको कैसे करना है. सो बेसिकली आप बताएंगे क्या करेंगे. ये बंदे ने डाटा भेजना है इधर, दो तारे यहाँ पे बिछी हुई हैं, एक लाहौर में एक इस्लामाबाद में, कैसे डाटा ट्रांसमिट करेंगे आप जीरो भेज सकते हैं या वन भेज सकते हैं. सर आप जरा रिपीट करेंगे, RX क्या था? रिसीव, TX ट्रांसमिट. जिस स्पीड पे डेटा रिसीव हुआ. नहीं, RX मीन वायर है, इस वायर का नाम है रिसीव वायर. बस इस वायर का नाम है TX वायर. मैंने जो डाटा रिसीव की रेट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अभी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का इंटरफेस की बात कर रहा हूँ कि ये रिसीव वायर है, इधर से डाटा इधर से इधर को जाता है. ये इसके लिए ये रिसीव है, रिसीव होगी इसके लिए, और इसके लिए ये रिसीव होगी. सारे एक ने ट्रांसमिट करना है तो दूसरी की क्या होगी, वो रिसीव होगी, और इसकी ये रिसीव होगी क्योंकि इधर से ये ट्रांसमिट हो रहा है, इसकी रिसीव होगी, और एक ग्राउंड कॉमन. तो जिसने ट्रांसमिट करना है उसकी TX वायर होगी, वो आपस में दोनों उल्टी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये इसकी पिन नंबर 2 ट्रांसमिट है और इसकी पिन नंबर 3 रिसीव है, तो जाहिर है कि बीच में कहीं ना कहीं ये आपस में उलट हो जाती हैं. अगर स्टैंडर्ड इंटरफेस को आप फॉलो करें तो दे 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 चेंज ओवर, क्योंकि उसकी पिन नंबर 2 ट्रांसमिट है, इसकी पिन नंबर 3 रिसीव है. ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है इस कनेक्टर पे, इधर भी 2 3 और 7. अब इसकी 2 ट्रांसमिट है, वो इधर रिसीव होनी है तो इसकी पिन नंबर 3 से लगेगी. इसकी 2 ट्रांसमिट है, उधर रिसीव होनी है, ये इधर इस पिन की पिन नंबर 3 पे लगेगी. तो ये बीच में कहीं ना कहीं चेंज ओवर तो होना है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चेंज ओवर, आई एम टॉकिंग कि एक का ट्रांसमिट है और दूसरे का रिसीव है. आपने डाटा भेजना है, कैसे भेजेंगे? दूसरे को आपने बिट्स भेजनी है, कोई बिट्स भेजनी है, 0011 0011, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ये स्टार्ट इसका किस तरह से हुआ, उसमें पहला काम उन्होंने कहा कि अच्छा यार मैं इधर एक LED लगा लेता हूँ. ये मैं बता रहा हूँ ऐसे ही एक तरह से पेडागोजिकली एक्सप्लेन करने के लिए. एक उन्होंने LED लगा लिया. अब जब इसने ट्रांसमिशन करनी, अगर तो ट्रांसमिट करनी है, ये लाइव हो गया ये वाली साइड, तो इसने +5 वोल्ट भेजने हैं. जो आपको सीरियल पोर्ट पे जब जाते हैं तो +5 मींस -12 वोल्ट जा रहे होते हैं, लेकिन हम +5 में ही रहते हैं कि फर्ज करेंगे +5 भेजेंगे, तो +5 भेजते हैं तो इधर क्या होगा, LED ऑन हो जाएगा. इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला कंप्यूटर समझ जाएगा कि यार इधर वाला कंप्यूटर जाग गया है, ये मेरे साथ इसका कम्युनिकेशन
का नेटवर्क जो है ना एनर्जाइज हो गया, अभी उसने कोई डाटा सेंड नहीं किया. इफ देयर इज नथिंग टू सेंड फॉर डेज, this +5 will stay like that. If there is nothing to send for days, तो ये वाला बेचारा बैठा हुआ है, ये सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि ये +5 है. अगर तो ये 0 वोल्ट हो जाती तो ये समझ जाता है कि वो उधर वाला कंप्यूटर ही किसी ने ऑफ कर दिया है, मॉडेम जो है ना वो किसी ने ऑफ कर दिया है, या कंप्यूटर ही ऑफ कर दिया. तो +5 ओवर हियर वुड मीन फॉर दिस कंप्यूटर जो इसकी ये वाली इनपुट बिट को बार बार पोल कर रहा है, तो अगर +5 आ रहा है तो उसको पता है कि ये वाली, ये इसके अंदर कोई माइक्रो कंट्रोलर ज्यूम करें कि लगा हुआ है जिस पे किसी एक पोर्ट की बिट के ऊपर ये इनपुट आ रही है, तो ये उसको पोल कर रहा है बार बार. अगर +5 जो ही +5 होता है किसी टाइम पे, तो इसका मतलब इसको पता लग जाता है कि वो वाला सिस्टम ऑन हो. अब एक टाइम आता कि बेशक ये इसका ही रहे, 2 साल रहे, 2 महीने रहे, कोई डाटा नहीं अगर भेजना, लेकिन ये इसको मॉनिटर करता रहता है रिसीवर कंप्यूटर. अब जब इसने डाटा भेजना है तो क्या करेगा, मस्ट है, इसके लिए मस्ट है कि पहले इसको लो करे. अब ये इसको पहले इसको पता है कि पहली स्टेट थी +5, ये स्टेट मशीन की तरह काम करता है. इसको पता है कि पहले स्टेट थी +5, अब ये लो हो गया, इसका मतलब है कि अलर्ट हो जाओ, डाटा आने लगा है, तैयार हो जाओ, डाटा आने लगा है कोई. अब ये कि ये लो टाइम कितना होगा, उसके बाद डाटा, अब जो है ना वो टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है. कि फर्ज करें मैं अभी आपकी सिंपलिसिटी के लिए कि 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 1 बिट टाइम. तो ये 1 बिट के लिए, 1 बिट टाइम का मतलब है कि ये 1 मिली सेकंड के लिए लो हो जाएगा. इसको कहते हैं स्टार्ट बिट. ये लो मस्ट है 1 मिली सेकंड के लिए, इसको कहते हैं स्टार्ट बिट. अब ये 1 मिली सेकंड अगर इन दोनों ने आपस में म्यूचुअली किसी तरह से एग्री किया होना चाहिए, फोन पे बता दें या किसी तरह से कि भाई मैं, प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन फर्ज करें इसने फोन पे बता दिया कि मैं आपको 1 मिली सेकंड पर बिट के हिसाब से डाटा भेजूंगा, तो लो हो गया. उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो अपनी 1 बाइट भेजेगा, RS-232 इंटरफेस में 1 बाइट भेजेगा. हर बिट जो है उसका टाइम 1 मिली सेकंड होगा. यहाँ पे 1 बाइट भेजेगा, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. फिर यहाँ पे 1 बाइट भेजेगा, LSB भेजेगा पहले. सो इट इज एन LSB फर्स्ट प्रोटोकॉल. टाइम इधर को जा रहा है, पहले LSB भेजेगा. सो दिस इज LSB, इट कुड बी 0 और 1, फिर LSB के बाद वाली, फिर LSB के बाद वाली. इस तरह से उसने 8 बाइट भेजनी. तो छोटा कर देता हूँ वरना आगे मेरे पास टाइम नहीं होगा. 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट्स उसने भेजी हैं. अब उसके बाद क्या करेगा, 7 बिट्स भेज दिए हैं, उसके बाद क्या करेगा, तो वो इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ये इसको हाई रखेगा. मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इसको हाई रखेगा. as you can see here, so we are back to this state over here when it was high. अब अगर उसने कोई और बाइट नहीं भेजनी तो तो ये हाई ही रहेगा. एक ही बाइट भेजनी थी तो ठीक है, हाई ही रहेगा फॉर एवर. सिर्फ एक ही बाइट अगर भेजनी थी, लेकिन ये अगर लो होता है और 8 मिली सेकंड के बाद ये दोबारा हाई नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है, तो बताएगा. तो ये लो हुआ, उसने कहा बाइट भेजनी है, इसने कोई 0 1 0 1 भेजे,
वो सारी 0 बाइट भी हो सकती, सारी 0 बाइट उसने भेजी, कुड बी ऑल जीरोस। उसने 0 भेजा, 0 भेजा, इसने 8 मिली सेकंड हर दफा उसने देखा कि इसने 0 भेजा। उसके बाद जब सारे जीरोस 8 भेज दिए, उसके बाद इसका हाई होना मस्ट है। इट डजंट गो हाई अगेन, इसका क्या मतलब है? सर कंप्यूटर क्या बंद मतलब हो है? गया। हाँ जी, कंप्यूटर बंद हो गया, इसका मतलब है कि ये मुझे ये कंप्यूटर ही बंद हो गया। मैं तो समझ रहा था कि अब डाटा आने लगा है, लेकिन क्योंकि ये हाई नहीं हुआ, इसका मतलब कंप्यूटर ही बंद हो गया, तो इसको ऑफलाइन हो गया कंप्यूटर। सो दिस विल गो इनटू ऑफलाइन स्टेट। सो ऑनलाइन होता है जब ये 1 होता है, दिस इज ऑनलाइन स्टेट। अगर ये इसके बाद 0 ही रहता है, तो दिस इज ऑफलाइन स्टेट। इसका मतलब कंप्यूटर ऑफ हो गया किसी वजह से। तो यू कैन देखिए कैसे क्लेवर चीज उन्होंने इसके अंदर डाली हुई है, छोटी छोटी क्लेवर किस्म की उन्होंने इसके अंदर चीजें डाली हुई हैं, सो दैट यू कैनॉट से कि यार मैं सारे जीरोस भेज नहीं सकता, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन बाय एडिंग दीज बिट्स इन दिस सीन ओवर है, दे आर बेसिकली मेकिंग अ प्रोविजन फॉर एनी काइंड ऑफ डाटा टू बी सेंड, चाहे वो सारे जीरोस हों, चाहे वो सारे वंस हों, चाहे 1010 कुछ भी हो। तो उसके बाद ये अब मिनिमम डिस्टेंस है। ये 1 बिट का भी हो सकता है, 2 बिट का भी हो सकता है, हाफ 1.5 बिट का भी हो सकता है। अब आप कहेंगे 1.5 बिट का क्या मतलब है? 1.5 बिट का भी ये वाला टाइम हो सकता है। 1.5 बिट का क्या मतलब है? हाँ जी, जाहरा, व्हाट वुड बी 1.5 बिट? टाइप करके बता दें ईमान, व्हाट वुड बी 1.5 बिट? कोई तो बताए। दिस टाइम कैन बी 1 बिट, दिस इज कॉल्ड स्टॉप बिट। This time can be 1 bit, 1.5 bit, 2 bit, so on. So 1.5 bit का क्या मतलब है? ये एग्री होना चाहिए इन दोनों के बीच में कि ये मैं कितने स्टॉप बिट कितनी भेजूंगा। तो बताएं जरा 1.5 बिट का क्या मतलब है? कि हाफ ये मिली टाइम, सेकेंड सर, सॉरी, हाफ मिली सेकेंड। हाफ 1.5 का मतलब 1.5 मिली सेकेंड। वेरी गुड ईमान, 1.5 मिली सेकेंड, वेल डन। तो दिस टाइम कैन बी हाफ 1.5 बिट का मतलब ये दिस टाइम भी। तो इसको पता होना चाहिए कि 1.5 बिट का टाइम है। अगर इसके बाद उसने कोई और बाइट भेजनी है, तो फिर वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा, 0 भेजेगा। उसके बाद 8 बिट का टाइम है अपने फ्रेम में, वो अपनी बिट्स जो भी भेजनी है, 8 बिट का फ्रेम है, उसमें जो भी बिट्स भेजनी है, दिस कुड बी एनी 0 1, और उसके बाद ये भेजेगा, फिर दिस विल गो ऑन लाइक दैट, कैन सेंड इट लाइक दिस। लेकिन उसमें ये भी था कि सो फॉर एवरी byte you have to send one stop bit and stop bits. तो इस तरह से देखें, बड़ा क्लेवर सा उन्होंने ये सीन बना लिया कि इस तरह से ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनेगा। और टाइम का पहले डिटरमिन करना मस्ट था कि टाइम का पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें को थोड़ा सा एरर का भी फीचर डाल दें कि अगर कोई एरर आए तो पता लग जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने इसके अंदर फिर यहाँ पे ब्लू मार्कर है या ग्रीन है? स्टॉप बिट्स, यहाँ पे उन्होंने एक चीज की, तो वो क्या थी? वो थी कि उन्होंने इसके साथ यहाँ पे पैरिटी बिट भेजी।
और स्टॉप बिट जो थी दैट फॉलोड द पैरिटी बिट। P means parity। सर ये पैरिटी बिट हम अपने डाटा के साथ ही भेजते हैं? हर बाइट के साथ एक पैरिटी बिट भेजते हैं। सो पैरिटी बिट भी डिसाइड हो जाती है दोनों के बीच में कि भाई अगर एरर आ रही है आपके और आपको शक है कि एरर आएगा तो ये ऑप्शनल होती है, आप कहते हैं कि मैंने पैरिटी भेजनी है या नहीं भेजनी। अगर आपके दोनों कंप्यूटर बिल्कुल करीब हैं तो यू कैन से इंक्रीज योर डाटा रेट बाय टेलिंग द अदर कंप्यूटर आई विल नॉट सेंड पैरिटी, दैट वे दिस बिट इज नॉट सेंट। लेकिन अगर पैरिटी बिट भेजें तो ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ये पैरिटी कैन हेल्प यू डिटेक्ट एरर्स। वो कैसे डिटेक्ट करती है एरर के? पैरिटी हमने पढ़ा भी है डीएलसी में कि ये जो 9 बिट बन गई हैं तो इनकी दो केसेस हो सकते हैं, एक इवन पैरिटी जैसे हमने पढ़ा भी था और एक ऑड पैरिटी। तो इवन पैरिटी में ये सारी 9 की 9 बिट्स जो हैं इनकी पैरिटी इवन होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन कि 9 बिट पैरिटी ओवर 9 बिट्स। Parity is computed over 9 bits. So it has to be थोड़ा नीचे कर लो यार वो, हाँ, over 9 bits. So parity has to be even parity means all the 9 bits have even parity. हमने पढ़ा था, किसी को याद है कि even parity का क्या मतलब होगा? अब्दुल्ला अफजाल, हसन हबीब, anyone please, what is even parity? हमने पढ़ा भी था डीएलसी में। किसी को नहीं याद? So even parity means that number of bits, total number of bits in these 9 bits must be even. For example, these 9 bits have even parity. So this one is parity bit, and these are 8 bits that I am setting. Total bits are 1, 2, 3, 4. So this will be called an even parity. No matter where the bits are, the count is not, the count should be like that. And similarly for odd parity, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So this is odd parity. When bits are these bits are odd, a bit is added to make it even. If these bits are already even, then this bit is made 0. That is for even parity. So this bit includes in total number of bits. On the receiver side, if you send the bits should be even and the number of bits are actually not even, including the parity bit, that means an error has occurred. So that way you सर get an error. पैरिटी बिट एलएसबी पोजीशन पे लिखते हैं कि एमएसबी पोजीशन पे? ये टाइम के साथ देखें ना तो आपको सबसे आखिर में सेंड होती है पैरिटी बिट। तो क्योंकि ये एमएसबी के साथ लगी हुई है ना तो इसको एमएसबी के साथ ही समझा जाए। एलएसबी पहले भेजी है ना तो एमएसबी यहाँ पे भेज रहे हैं एमएसबी, तो इसको एमएसबी के साथ ही समझा जाएगा practically. So if I agree to have even bits, every time a 9 bunch of bits I receive must have total number of bits equal to even. In 9 bunch of bits, all the, so इन सब का exclusive R होता है रिसीविंग साइड पे, आपने याद होगा ना exclusive R से पकड़ते हैं बिट्स। तो अगर सबका 9 बिट का इनपुट का exclusive R होता है, अगर कभी भी उसकी आउटपुट 1 होगी तो इसका मतलब है कि एरर आई, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर गिव यू इवन पैरिटी
exclusive NOR gives you even parity, exclusive OR gives you odd parity. तो इनका जब एक्सक्लूसिव NOR करती है सारों का, अगर तो कभी भी वो 1 आता है तो इसका मतलब है कि एरर आई है. तो वेरी वेरी सिंपल प्रोटोकॉल, and just using exclusive NOR gate you can catch an error. So this is basically what the protocol is, and the number of stop. अब आप पूछेंगे कि ये कैसे एग्री होता है, तो इसमें यही होता है कि स्टार्ट में व्हेन यू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स, वो 300 बाउड रेट पे कनेक्ट होते हैं. एक जाहिर है कि मास्टर होता है, एक स्लेव होता है. Although this is not master slave concept is not here, it could be a master. It tells the receiver side, the other side, कि अच्छा मैं थोड़ा सा अपना डाटा रेट इंक्रीज करने लगा. लाइक आपका कंप्यूटर है, आप पुराने जमाने में आप थ्रू मॉडेम यू कुड कनेक्ट टू द इंटरनेट, थ्रू आजकल आप वाईफाई पे कनेक्ट होते हैं. तो यू स्टार्ट विद वेरी मिनिमम बेसिक मिनिमम ट्रांसमिशन रेट, दैट व्हेन यू कनेक्ट फर्स्ट, दैट कुड बी 300 बाउड रेट. उसको आप कह सकते हैं कि पता नहीं कितने मिली सेकेंड पर बिट बनता है, उससे आप कनेक्ट होते हैं. जब आपका कनेक्शन हो जाता है फिर आप बातें कर सकते हैं. तो आप उस वक्त उसको कहते हैं कि अभी मैं डाटा जो भेज रहा हूँ ये यूजर डाटा नहीं है, लेट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड लेट अस सेट सम बिट रेट जिसपे हम मैक्सिमम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं. तो ये बढ़ाता जाता है रेट, ये उसको पैरिटी बताता जाता है कि भाई एरर नहीं आई है. जब एरर आनी शुरू हो जाती है तो ये उसको कह देता है कि भाई एरर आ रही है, अब कम करो अपना रेट. तो जिस रेट पे एरर नहीं आती उस रेट पे ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑटो बॉर्डिंग मैकेनिज्म. ऑटो बॉर्ड in microcontroller world, very few devices have auto boarding mechanism. There you have to set the date. Most popular one, the devices that come are 9600 baud rate, 9600 bits per second. 9600 is very common. So many devices that I will talk about in serial communication realm and RS-232, they have 9600 baud rate. So if you don't know कि क्या baud rate है इसका और वो फिक्स baud rate वाली चीज है, तो you can always start trying with 9600. आप कोई डाटा भेजते हैं, अगर उधर से कोई डाटा रिसीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई. So basically the time of per bit has to be agreed. So 9600 bits per second defines कि एक बिट का टाइम क्या होगा, और रिसीवर को पता है कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा और इसके बाद ये हाई होना चाहिए. अगर ये हाई नहीं होता तो इसका मतलब कि ऑफलाइन हो गया. तो ये वाला टोटल टाइम इसका उसको पता लग जाता है. इसमें एक प्रॉब्लम जो अक्सर पेपर में या क्विज में आ सकती है, दैट इज कि अगर आपने 1 मेगाबाइट सब डाटा सेंड करना है, प्रॉब्लम एट यूजर डाटा 1 मेगाबाइट है एट 9600 bits per second. How much time will be needed to send this data with the one stop bit, 1.5 sorry start bit यहाँ पे आना था, start bit 1.5, stop bit, parity bit. तो बताइए इसको टोटल कितना टाइम लगेगा एट 9600 बिट्स पर सेकेंड. अगर आपको द टोटल टाइम 1 मेगाबाइट्स आपने सेंड करनी है, तो हाउ मच टोटल टाइम विल बी नीडेड.
तो उसको कैसे निकालेंगे टाइम इसका, दैट्स अ प्रॉब्लम क्वेश्चन हियर। तो इसका टाइम कितना लगेगा इसको सेंड करने के लिए? So 1 megabytes of data. When it comes to transmission, 1 megabyte means 1 into 10 raised power 6. It is not 2 into 10 raised power 20. ट्रांसमिशन साइड पे डाटा का बाइट्स जो है ना वो कंप्यूटर की स्टोरेज वाली बाइट्स और चीज होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोरेज इन मेगाबाइट्स, दैट इज 2 raised power something. When we कम्युनिकेशन साइड पे 1 megabyte means 1 megabytes. It is 1 into 10 raised power 6. So एक बिट भेजने के लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा? एक स्टॉप बिट भेजनी पड़ेगी, 8 बिट्स ऑफ डाटा भेजना पड़ेगा, वन 1.5 बिट स्टॉप भेजनी पड़ेगी, 1 बिट पैरिटी भेजनी पड़ेगी। तो एक बिट को ये भेजना पड़ेगा। इसको पर बाइट का मतलब है कि 1 into 10 raised power 6, इतनी टोटल बिट्स आपको भेजनी पड़ेंगी। दिस इज इक्वल टू टोटल बिट्स। टोटल बिट्स टू ट्रांसमिट टू tx। अब ये टोटल बिट्स हैं, इनको डिवाइड करेंगे 9600 बिट्स पर सेकंड से, तो आपका टाइम आ जाएगा इन सेकंड। तो कोई करके दिखाएगा? कोई करे इसको कैलकुलेशन? 1 + 8 + 1.5 + 1 into 1 in 10 raised power 6, ये टोटल बिट्स आ जाएंगे। टोटल बिट्स टू ट्रांसमिट क्या आंसर आता है? 11.5 into 10 to the power 6. 11.5 into 10 raised power 6 बिट्स। अब इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम के लिए, इसको टाइम पीरियड से डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दें या फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो टाइम इज इक्वल टू 11.5 into 10 raised power 6 डिवाइड बाय 9600 बिट्स पर सेकंड। इसको बीपीएस लिख देता हूं क्योंकि ये कॉमन टर्म बी ओवर एस नहीं यूज होती, बीपीएस यूज होती है, बिट्स पर सेकंड। So this comes out to be कितना आता है ये? 1198 1198 सेकंड्स। कितना सेकंड टाइम आता है? अब उसमें अगर आपको कोई पूछे कि ये एफिशिएंसी क्या है इस सिस्टम की, एफिशिएंसी ये कि आपका डाटा था 8 into 10 raised power 6, ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं ये वाली जो एक्स्ट्रा जा रही हैं साथ, ये तो साथ में पिगी बैक होके जा रही हैं, ये कम्युनिकेशन को कंफर्म करेंगे कि बाइट्स का डाटा जो है ना प्रॉपर तरीके से जाए। तो ये एक्स्ट्रा बिट हैं, दे आर बेसिकली you can say they are adding to inefficiency of the system. 8 bytes को ideally speaking 9600 bits per second पे, या which is इसको 8 को उससे डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो गई हैं, दे आर एडिंग टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सो एफिशिएंसी सिस्टम की क्या होगी कि आपने जितनी भेजनी थी डिवाइड बाय यूजर डाटा को एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए था, दैट वुड बी द एफिशिएंसी। अगर हम 8 भेजें और एक्स्ट्रा ये बाइट्स ना भेजें तो कितना टाइम लगेगा, जिसको आइडियल टाइम कहेंगे। Ideal time would be, ideal time should be 8 into 10 raised power 6 total bytes of bits of data divided by 9600 bps। तो ये कितना टाइम आता है? $833.3 833.3 है, 833 सेकंड रफली। तो ये आपकी इनएफिशिएंसी है। अगर आप एफिशिएंसी निकालें
that will be 833 divided by 11.8, 1198% into 365 100%. 65%. 365 सेकंड्स है मतलब डिफरेंस दोनों में। नहीं नहीं, वो ना डिफरेंस ना निकालें, इसको इसके से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। सिक्सटी 69.5%। 69.5% एफिशिएंसी है इसकी। और आप देख रहे हैं, अगर आप पैरिटी बिट ना भेजें फिर एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो जाएगी, अगर स्टॉप बिट 1 भेजें तो और इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ तो भेजनी, ये मिनिमम जो है ना 0.5 बिट की स्टॉप बिट हो सकती है और 1 बिट की स्टार्ट बिट तो चाहिए होती है, इससे कम नहीं आप जा सकते। ये नहीं हो सकता कि आप स्टार्ट बिट ना भेजें। अगर आप ये स्टार्ट बिट्स बिल्कुल ना भेजें तो फिर आप वो ब्लॉक वाइज डाटा भेजते हैं, जिसको फिर ब्लॉक वाइज जब भेजें तो वो पैकेटिंग वाला सीन हो जाता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि पैकेटाइजेशन कैसे करते हैं और पैकेट्स में डाटा कैसे भेजा जाता है, जो कि इंटरनेट पे भेजते हैं या दूसरी चीजों पे। तो वो दैट इज द सेकंड थिंग टू स्टडी, पैकेटाइजेशन। वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट मी सी, अगर कोई हमारी स्लाइड में कोई एक आध स्लाइड रह गई है तो वो मैं जल्दी से उसको भी कर लूं। तो ये सारे सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये देखें, ये आपके पास मैं एक डाटा भेज रहा हूँ, 8 बिट्स ऑफ डाटा, और ये डाटा जो भेजा जाता है ये ASCII कैरेक्टर टेबल से भेजा जाता है। अब मैं ये ए भेज रहा हूँ, ए इज इन ASCII, इट इज 41 इन हेक्स। तो 41 इन हेक्स, यहां से देखें कि ये 0100 इज 4, 0001 इज आवर 1, सो 41 यही जा रहा है, ये स्टार्ट बिट है। इसके बाद ये आपकी 2 स्टॉप बिट्स, उसके बाद अगला डाटा स्टार्ट हो रहा है, वो भी एक स्टॉप बिट से, स्टार्ट बिट से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई और बाइट ना होती, सिर्फ ए ही भेजना है मैंने, तो ये फिर स्टार्ट ही रहेगा। ये देखिए, ये कंप्यूटर पे वही चीज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। ये कंप्यूटर में मैंने सीरियल पोर्ट से डाटा सेंड करके एसिलोस्कोप पे उसका स्नैपशॉट लिया हुआ है आपके सामने। तो ये स्टॉप बिट जा रही है। इसके बाद आप देखिए डाटा क्या जा रहा है, ये स्टॉप बिट है 0010, इसका उल्ट करना पड़े, इधर से पड़े 01000100। तो ये बनता है 0148, 48 को अगर हम हेक्स ASCII टेबल से देखें तो आपको क्या नजर आएगा? 48 ASCII टेबल पे देखें जरा, कोई देखेगा? ASCII टेबल नेट पे मिल जाता है आपको। व्हाट इज 48 इन हेक्स? ये यहाँ से देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने इसको 48 बनाया है। क्योंकि ये आपकी स्टॉप बिट है, ये आपकी 01001000, ये आपकी स्टार्ट बिट है। टाइम इधर को जा रहा है ऑसिलोस्कोप पे। तो ये भेजा मैंने 0100410008, 48 इन हेक्स। तो ASCII टेबल से बताइए किसके बराबर आता है? एनीबॉडी? सर्च करें नेट पे, आपको ASCII टेबल मिल जाते हैं। तो ये देखें, किलो हर्ट्ज में भी डाटा 10 किलो हर्ट्ज पे जा रहा है, विच इज नियरली इक्वल टू 9600 किलो बिट्स पर सेकेंड, 10 किलो हर्ट्ज। तो डाटा की स्पीड है 10 किलो हर्ट्ज। एनीवन? कोई नहीं पता लगा सका 48 क्या होता है हेक्स में? सर एच होता है। एच नहीं हो सकता यार, हेक्स में देखें। सर हेक्स नहीं देखा। ASCII टेबल,
हेक्स किधर है? हेक्स 48 48 हेक्स H, you are right, this is character H। यार मैंने तो 4A भेजना था, मैंने हेक्स क्यों भेजा? ओहो, मैंने J भेजना होता था। बारह चलें, कोई नहीं, गलती होगी मेरे से। सो इट इज कैरेक्टर that is being sent। किधर गई मेरी स्क्रीन? शेयर स्क्रीन। किधर मेरी स्क्रीन? वो वाली। किधर गई स्क्रीन? ये okay, so we're talking about this, so this is the serial communication। 10100 हैक्स में ये भेज रहे हैं, ये बार बार मैंने लूप में लगा के कंप्यूटर पे सीरियल पोर्ट पे मैंने उसको डाटा भेजा है, तो ये देखें बार बार वही डाटा जा रहा है। दिस इज द टाइम ऑफ द लूप टाइम, जितनी देर में वो लूप में वापस आता है और दोबारा से द मेन टाइम व्हेन द डाटा इज नॉट सेंड जो है ना हाई रहती है। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसका टाइम भी आप मेजर कर सकते हैं सीरियल पोर्ट का अपने कंप्यूटर पे, और स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट है -12 इज 1 +12 इज 0। मोस्ट पीसीज हैव स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट ऑन द बैक, आजकल नहीं। अगर आप को स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट, कई मॉडम है जैसे GPRS का मॉडम है या GSM का मॉडम है या जिस तरह ये लेजर रेंज फाइंडर का मॉडम है, जो भी मॉडम है इनके साथ ये सीरियल पोर्ट इंटरफेस आता है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं इनके साथ। So most of these modern GPRS, GSM, these are all interface to the computer with standard serial port, so that इसका अपना प्रोसेसर है, जाहिर है ये इसने अपना काम करना है, इसने पूरा रेडियो है इसके अंदर, इसने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, बट आप इसको सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करके आप इसको कह सकते हैं कि SMS करो, कॉल करो, जो भी है वो सारी कमांड आप इसको भेज सकते हैं थ्रू कंप्यूटर और थ्रू अ माइक्रो कंट्रोलर। आप all you need to do is connect the serial port with your computer, microcontroller or your computer. So you can, this basically can then make you, let you allow you to send serial data लगाया हुआ डिस्प्ले सीरियल पोर्ट मॉनिटर का, ये बता रहा है कि किस बॉड रेट पे कनेक्ट हो रहा है, 9600 BPS। स्टॉप बिट्स कितनी है, पैरिटी मैंने नन रखी हुई है, पैरिटी और इस तरह से। और ये आपके पास अगर जब डाटा जाता है तो ये ग्रीन होता है, जब रिसीव होता है तो ये रेड होता है। तो ये सीरियल पोर्ट से आपको डिवाइस लगा के कंप्यूटर से आप डाटा भेज सकते हैं। अगर आपके पास LCD स्क्रीन नहीं है और आपने कोई डिबगिंग करनी है तो आप सीरियल पोर्ट से डाटा कंप्यूटर पे भेज दें। ये एक सीरियल पोर्ट की FTDI केबल है, स्टैंडर्ड केबल हमारे पास भी है, पड़ी हुई है, स्टैंडर्ड से सीरियल पोर्ट की केबल। इसमें ये है कि आप USB से लगाते हैं तो आपको यहाँ पे सीरियल पोर्ट का TTL इंटरफेस मिलता है, उसमें +5 इज 1 एंड 0 इज 0। सो TTL में और स्टैंडर्ड में फर्क है। माइक्रो कंट्रोलर TTL से बात करेगा, अगर आप TTL से नहीं बात करना चाहते तो आपको फिर ये केबल खरीदनी पड़ती है, और TTL टू स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये एक बोर्ड चाहिए होता है जिसके अंदर ये मैक्स 232 लगा होता है। आप अपने जो ग्रीन बोर्ड है उसके ऊपर भी आपको देखेंगे तो ये एक मैक्स 232 लगा होगा, जो कि
प्लस माइनस 12 वोल्ट को 0 प्लस 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। दैट्स ऑल इट डज, सो दैट इट कैन कम्युनिकेट विद द माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपकी सीरियल पोर्ट है, हमारे पास भी ये पड़ी हुई है, सीरियल पोर्ट्स भी हैं, और वो नीले वाली दिखाओ यार जो हमने उनको भेजी है। तो related questions, draw a diagram when transmitting a particular byte। तो आपको हेक्स टेबल से देखना पड़ता है कि क्या बाइट है, उसकी क्या बिट्स होंगी, एलएसबी पहले भेजेंगे, एमएसबी पहले भेजेंगे तो क्या होगा, और फिर व्हाट टाइम इट टेक्स टू सेंड ए पर्टिकुलर एन बिलो बाइट्स ऑफ डाटा ऑन अ सीरियल पोर्ट। ये हमने कर लिया है, ट्रांसमिशन रेट दिया और सब कुछ दिया, एफिशिएंसी भी हमने कर ली है। सो ये वाला हमने सारा कर लिया है आज का, ये वाला रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन वाला सीन। तो दिस इज प्रॉब्लम एंड ऑफ द सीरियल पोर्ट। इसमें बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपके सामने ये है FTDI केबल, फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इंटरनेशनल FTDI केबल। ये इन्होंने ये केबल बनाई हुई है, इसके अंदर आईसी लगा हुआ है जो कि बड़ा मशहूर आईसी है FTDI, और इत्तेफाक से वो मोस्ट पॉपुलर कंपनी वही है जो कि USB टू सीरियल पोर्ट। जब आप इसको कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपने क्या करना होगा, आपके पास भी ये पड़ी होगी, आप इसको लगाएंगे कंप्यूटर में तो आप क्या करेंगे, आप शेयर स्क्रीन करेंगे, नहीं आप नहीं शेयर स्क्रीन करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद दिस पीसी पे, इसको शेयर कैसे करूं, तो आप दिस पीसी पे जाएंगे, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, आपके पास ये इक्विपमेंट में है TTL वायर, USB TTL वायर, चेक करें जरा, जी जी है जी। चेक करें, जिसके पास नहीं है वो जल्दी से बता दें, हमने ये सब कुछ सेंड किए। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे ये लगाना है जरा, जो ही आप लगाएंगे तो ये अननोन डिवाइस आ गई है, कॉम पोर्ट बन गई है ये कॉम पोर्ट। तो इसका जो हार्डवेयर है वो तो बनाया हुआ FTDI कंपनी ने, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो एक और कंपनी है जिसका दुनिया में उसका ड्राइवर यूनिवर्सल ड्राइवर है जबरदस्त, प्रोलिफिक कंपनी है जिसने इसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ। मोस्टली आपके कंप्यूटर पे जो ही आप लगाएंगे तो खुद ही डिटेक्ट हो जाएगा कि USB टू सीरियल पोर्ट की कोई डिवाइस लगी और एक काम पोर्ट आ जाएगी, इसको कहते हैं काम पोर्ट। उतारें इसको तो ये गायब हो जाएगी, उतारें जरा, ये देखें गायब हो गई। ये आपने चेक करें, अब आज ही ये चेक कर लें कि आपकी काम पोर्ट जो है ना वो लगाने से ये इसमें सीरियल पोर्ट पे आती है कि नहीं। यहाँ पे ये COM3 है ये, क्योंकि यही COM3 जब आप माइक्रो सी चलाएंगे तो इसी COM3 से आपने फिर जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी है माइक्रो सी की तरह यार। ये आखिरी चीज है, फिर हम खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर। माइक्रो सी, तो इसमें माइक्रो सी में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको आजा आजा आजा, ये थोड़ा सा फायदा है वैसे ऑनलाइन का कि हम जो है ना उससे चीजें लैब क्लास में वैसे ही ये सब कुछ दिखाना एक साथ साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज माइक्रो सी, इसमें टूल्स में जाएं आप, तो टूल्स में जाएं, आपको यहाँ मिलेगा UART टर्मिनल। इसके लिए कोई कुछ और होने की जरूरत नहीं है, UART टर्मिनल। यहाँ पे ये देखें उसने काम पोर्ट खुद ही पकड़ लिए COM3। अगर आपने एक से ज्यादा US काम पोर्ट्स लगाई हैं, एक से ज्यादा इस तरह की
FTDI केबल्स लगाई हुई हैं, तो वो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी पकड़नी। तो यहाँ पे आप सेंड करें डाटा, आप करते हैं कुछ सेंड करेंगे तो सेंड करें, तो ये सेंड वाले बॉक्स में आ जाएगा। अगर तो उसके जवाब में कोई रिप्लाई भेजना है माइक्रो कंट्रोलर ने, तो वो यहाँ पे आएगा रिसीव वाले बॉक्स में। अगर आपने चेक करना है कि आपकी काम पोर्ट केबल ठीक है कि नहीं, आप रिसीव को ट्रांसमिट से किसी जंपर से शॉर्ट कर देते हैं। RX तो TX का ये दो जर्मन है, इसमें RX एक है, एक TX है। ग्रीन और रेड जो है, ग्रीन और ग्रीन ग्रीन और वाइट जो है, ये सप्लाई। तो ग्रीन और वाइट RX और TX है, ये ग्रीन और वाइट केबल, इनको आप अपने किसी जंपर से स्टार्ट करें, उससे ये होगा जो भी आप इसे सेंडेंगे वही रिसीव होगा। इससे टेस्ट हो जाएगा कि आपका ये सच है कि नहीं। ये देखिए मैंने इनको शॉर्ट कर दिया, ग्रीन और वाइट। तो अब मैं जो भी सेंड करूंगा वही उम्मीद है कि रिसीव हो जाएगा। जो सेंड किया वो जो सेंड किया वो जो सेंड किया वो रिसीव। अगर ये सेंड करूंगा तो वही रिसीव हो जाएगा। ये रिसीव। So this is basically whole serial port का सीन है ये। तो let's end our lecture today. कोई क्वेश्चन? सही है, बताइए तुम्हारे रिसीव कैसे? रिसीव ये है कि अगर आपके पास अभी तो माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा हुआ ना, तो आपने अगर केबल चेक करनी है कि ठीक है कि नहीं, आप इसका रिसीव और ट्रांसमिट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो रिसीव जो है वो और ट्रांसमिट जो है ना वाइट है और ग्रीन है। ये आपको नजर आ रहा हो कि ये दोनों मैंने शॉर्ट कर दी होंगी। अब मेरी तार इतनी लंबी नहीं है कि मैं ज्यादा करीब कर सकूं। कैमरा को शेयर करके दिखाना पड़ेगा मुझे। एनीवे मैं वो बाद में दिखाता हूँ। इधर जब मैं सेंड करूंगा तो वही रिसीव हो जाएगा। इसको मैं ये रिसीव विंडो क्लियर कर लेता हूँ। अब ये ट्रांसमिट विंडो भी क्लियर कर लेता हूँ। इधर से मैं जो सेंड करूंगा अपना नाम रिसीव सेंड करूंगा, JAHANGIR JAHANGIR जहांगीर सेंड किया है। तो ये जो रिसीव हुआ है ये इधर से होके वापस गया है और रिसीव हुआ है, वरना यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ था। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ अनशेयर करके। तो ये आपके सामने इसमें जो मैंने ग्रीन और व्हाइट जो है ना, इन केबल को आपस में कर दिया हुआ है। ग्रीन और व्हाइट को आपस में मैंने जंपर से शॉर्ट कर दिया। व्हाइट नजर नहीं आ रही क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है। अब देख लें, व्हाइट और ब्लैक को मैंने शॉर्ट किया। तो इससे DS RX और TX दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। जो भी सेंड करता हूँ वही मुझे रिसीव हो जाता है। इसको अगर मैं लूप में लगा दूं, जो कि उसमें एक ऑप्शन है कि आप लूप में लगा सकते हैं, तो फिर आप इसके साथ सीरियल पोर्ट भी लगा लें, अपना मॉनिटर लगाएं, अपना ऑसिलोस्कोप लगाएं, आपको करैक्टर देखें, आपको उसका जबरदस्त किस्म का वेवफॉर्म मिलेगा जो आप करैक्टर भेजें। ये एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बे आपके खुद करने वाले हैं। मैं कि हम तो आपको बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई इंजीनियर बनना है तो कुछ थोड़ा सा आप इंजीनियरिंग एटीट्यूड डालें, अपने आप को इंजीनियरिंग के कपड़े पहने। और सही है। तो दैट्स एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। एनी क्वेश्चंस? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है मैंने। तो